Bengal has been an important melting point, blending indigenous traditions with cosmopolitan influences from different subcontinental and foreign empires. Bengal's cultural and cooking heritage is hundreds of years old. No wonder आज भी Bengalis अपने ट्रेडिशन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं. ये इनके लाइफस्टाइल और खाने में भी झलकता है. पांच एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है. स्ट्रॉन्ग ऐसे कि 5 सेंसेस को जब आप मिलाते हैं तो इंसान बनता है. और बंगाली क्यूजीन के अंदर जब 5 स्पाइसेस आप मिलाते हैं तो बनता है 5 फोरन. और 5 फोरन बंगाली क्यूजीन की जान है, ये कहना बिल्कुल सही होगा. इनफैक्ट आज जो मेरी गेस्ट हैं जो आ रही हैं, उनकी जिंदगी में भी 5 जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने बखूबी संभाली हैं. शी इज अ हिस्टोरियन, a writer, journalist, consultant and a chef. मतलब फुल 5 का जोर है वो भी. Morich's jhol is typically one of the stews that we have. तो stew जैसा एक-एक घर पे एक-एक टाइप का बनता है. हाँ. वो this has also evolved like that. But the earliest reference that one gets of Morich's jhol is in the Chaitanya Mongol. Now, the Mangal Kavyas, what we call Mongol Kavya, were written continuously from the 13th centuries to the 18th centuries and perhaps even beyond. Okay. By different poets from different parts of the region. जहाँ पर Morich's झोल completely vegetable से बना हुआ vegetarian dish है, is it possible कि वो बुद्धिस्ट एरा में स्टार्ट हुआ हो या फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए और जो वैश्विनिज्म फैला उस दौरान शुरू हुआ हो? Must have been there earlier because it seemed like a very common everyday jhol which Chaitanya Mahaprabhu's the then married, he was called Nimai, he hadn't become Mahaprabhu then. जी. And his wife Lokhi Priya जी. was taken as a new bride to the kitchen by her mother-in-law. And under mother-in-law's direction, she cooked innumerable dishes, vegetarian dishes, for her husband. Right. And one of them was Morich's jhol. It was cooked in ghee. Not in mustard oil? Not in mustard oil. I'll tell you why. Vaishnavism is about Lord Vishnu. जी. Now, Lord Vishnu is pure God. जी. So his food is cooked in pure cow milk ghee. Ah. Then we have the other side of the Shakti cult. जी. You know, the worshippers of Shiva, Kali, Durga. जी. So Shiva's food is cooked in mustard oil because of the volatile and pungent. It matches the character of Shiva. तो क्या अभी भी Morich's झोल कई लोग घी में और कई लोग मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं? हाँ जी. Like I am a Shakti Bhakt. Okay. But I still cook my Morich's jhol in ghee. Because that's how I like it. That's what I've grown up with. Curry, eating a curry the way you want it is a choice that you make. Absolutely. There are no boundaries. Absolutely. क्योंकि हम बना रहे हैं ये वैष्णव स्टाइल, राइट? इसके अंदर जाएगा घी. Ghee. ओके. I'm sure at that time they gave a lot more because the description says that when she put the curry, the ghee was streaming out of it. मुझे बिल्कुल वैसे ही खाना है जैसा उस शताब्दी में बनाया गया था. अच्छा. तो मैं और घी डाल रहा हूँ. डालिए. अब सबसे पहले बैंगन फ्राई कर लो. ये छोटा बैंगन जाता है इसमें? बड़ा बैंगन भी जाता, छोटा. Bengal also had different varieties of bengans. जी. तो ये जो Morich's झोल है, इसके अंदर मोरिच का क्या मतलब है? मोरिच का मतलब होता है कि जो चीज तीखा है, something that is fiery and hot. Peppery. And the word jhal is a synonym for morich also. एक अरसे पहले जब ये बनता था, तब इसे फ्लेवर करने के लिए या मोरिच डालने के लिए क्या ऐड होता था? Bengal was home to 3 different kinds. जी. One was pepper. जी. What we had more of it was, and it grew wild, was the pipali, बिल्कुल. which is the long pepper. जी. Right? Now, there was a third thing that the rest of India doesn't seem to mention it. It was called chui jhal or choi jhal.
It's a creeper plant ओके belonging again to the long pepper family. तो पेपरी फ्लेवर इसकी ये शाख से आता है? Different parts of the plant are used. The roots are the most pungent, and the part above it, that is the most fiery. जी So this is a twig. It won't be as fiery as the base of the creeper plant, which can grow to this much. वाओ दैट्स ह्यूज इसको पीस के भी यूज करते थे, या इसका छिलका निकाल के then cut it into pieces. सो इसको आपने यहाँ भिगो कर रखा है, सो आई विल जस्ट स्क्रैप इट ऑफ। Yeah, बचपन में हम लोग पेंसिल घिसा करते थे ना सिक्का निकालने के लिए, बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही करते हैं। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है, हाँ it has slowly disappeared. So green chili is so much more convenient. या आई हैव नेवर टेस्टेड दिस पर्टिकुलर मॉरिच। It's very difficult to source now. You get it in, specific areas nowadays. बट है अभी भी। है तो अब इसको छोटा छोटा काट दो, ये ऐसा स्टिक्स काटिए। स्टिक्स, ये तो ऐसे तोड़ भी हाँ, सकते हैं। तोड़ भी सकते हैं। बट आई कैन स्मेल दैट पेपरी टिंज टू इट। Peppery kind of gingery, lemony. अब हम डालेंगे गोल मिर्च। इसको हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। मेरे हाथ स्टील के नहीं है। ये पहले पुराने जमाने में करते होंगे, इसको कैसे क्रश करूं? Rubbing will release the flavors. हाँ जी, ऊपर का छिलका हाँ। निकल आएगा। हाँ, बस that is enough. That is enough. We are going to use all the moriches that were used then. ओके बस। हल्का सा कोकोनट। अब आप अपना सब्जी डालो। ये है आपका रिच गोट तोरी, जी। मोरिंगा ड्रम स्टिक, एश गोर्ड जिसको हम चालकुमरो बोलते हैं, जो पेठा होता है, और लाल पंपकिन, अरबी, क्योंकि उस टाइम पे तो आलू नहीं था, जी तो अरबी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरबीज वर यूज्ड, एंड शीम, which perhaps you all call papdi. ये नमक। अब आप आपका चोई डाल दो इसमें। चोई, चोई यानी चुई, चुई मोरी। झाल, हाँ झाल। झाल, झाल। झाल भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप पानी डालो, पूरा कवर कर दो। अब देखना एक एक सब्जी एक एक स्टाइल में कटा हुआ है। जी No one sabzi is cut the same way except for the two pumpkins, the ash जी। gourd and the lal pumpkin. softer the vegetable, bigger the chunk, or Yes. bigger the cut, और जितनी tougher the vegetable, thinly you slice. Thinly you slice, and you slice it in a certain way. There are certain shapes that we use. I see that round triangles. Yes. At an angle, Yeah. long. In modern day, if I'm using a potato, it will be cut long 4. Okay. One potato in 4. Okay. Because by the time it cooks, the potato is the first to get mushy. Right. So now, your vegetables are almost done. जी Here's the milk. हल्का सा मिल्क, और अब इसमें राइस फ्लावर। और फिर इसमें चीनी। अब इसको इसके अंदर Because पोर करना है? it has a fiery factor to it. हाँ हाँ। So the chini is added to balance that. It depends also on how thick you may want it. So proportionately you add your rice flour. Okay. Now you add the powdered pipli to it. अब डाल दो. See the color changing. बस अब ये तैयार? and you take it off with a little more ghee, Okay. bit of coconut as garnish. Last garnish is वो जो वड़ाज yellow split pea dal, हाँ उसके वड़ाज हाँ। is the last garnish to make it, and the gravy will slowly soak into it. Okay. Do you get the flavor? Oh my God, it's hot. Yes. Oh God, ये So the chewy curry chewy नहीं है? doesn't become hot, the chewy is hot. Oh God, इतना पेपर है इसमें. It's a very fresh flavor. It hits you and then it Yeah. kind of mellows down. Yeah. आप ये जो है ना, ये चुई झाल, ये आप यहीं पे रख कर जा रही हैं.
I'm taking this with me. Okay. Good luck finding yours. Preeta helped bust a lot of myths for me. Firstly, that the Bengalis' love for shark bhat is as much as the mach bhat. और बंगाली किचन्स में हर तरीके की सब्जी का उपयोग होता है. And the most amazing thing which I learned from her was about locally grown chui jal. It's a form of spice Bengal has been using for eons. Now, had this spice outlived its utility that it was no longer part of the culinary repertoire? Well, maybe. Preeta had taken me on a culinary journey of Moricher Jhol and it had thrown up numerous questions in my mind. The food enthusiast in me wanted to know more. क्या ये एज ओल्ड रेसिपी आज भी घरों में बनती है और अगर बनती है तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए हैं एंड हाउ हैज इट सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ आवर फास्ट फूड कल्चर. टू सीक आंसर्स आई ट्रैवल्ड टू कोलकाता टू मीट होम शेफ एंड ब्लॉगर देव जानी. इस डिश का नाम है जीरे धोने मोरिचेल झोल. ये एक ऐसा डिश है जिसके अंदर ये 3 स्पाइसेस जाता ही है. कौन कौन से? जीरा, क्यूमिन सीड, मोरिच मीन्स ब्लैक पेपर जी. एंड धोने इज धनिया. धनिया. हाँ जी. लेकिन ऐसा क्यों है कि घर पे मिलेगी और रेस्टोरेंट्स में इतनी पॉपुलर क्यों नहीं? एक्चुअली कोलकाता में शेफ एक कंसेप्ट है जिसको हम पाइस होटल कहते हैं. पाइस का मतलब होता है पैसा. एक ज़माने में जब लोग बाहर से आते थे, सोचो कि 30-40 किलोमीटर दूर से आए, पूरा दिन यहाँ पे लेबर का काम किया, उसके बाद कुछ पैसा रहा, वो लेके गया और उसने अपना पेट भर खाना खाया. जी. ऐसा खाना जो कि घर जैसा है. पाइस होटल्स में आपको ये चीज मिलेगा बट विथ फिश. मोरिचेर झोल के अंदर माछेर झोल. माछेर झोल. अरे वाह. बेसिकली जो अभी का माछेर झोल है वो ऐसा ही बनता है बट विथ फिश. Are you saying that माछेर झोल कहीं ना कहीं मोरिचेर झोल से निकला है? हाँ, जैसे आलू खाना स्टार्ट भी नहीं हुआ जब, तब भी हम लोग फिश खाते थे. तब झोल बनता था ग्रीन्स के साथ, जैसे साग के साथ बनता था. इस झोल का और भी एक नाम है जी. इसको हम लोग कहते हैं कोबिराजी झोल. कोबिराजी झोल. जैसे कि आयुर्वेदा होता है वैसे ही कोबिराजी ट्रीटमेंट हुआ करता जी. था. अभी भी है बहुत जगह पे. उसमें कहा जाता है ये जो जीरा, धनिया एंड ब्लैक पेपर दैट इज दोज आर आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है. ये वाला झोल जब बनता है, जैसे इसमें फिश नहीं है, इसको हम निरामिस झोल कहते हैं, वेजिटेरियन. इसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं जाता है. आपने अभी बात करी आलू की. हाँ. Now there is an entire love story between Bengalis and potato. हाँ जी. मतलब जिस डिश में प्यार डालना हो उस डिश में आलू डाल. Absolutely. So that's why मोरिचेर झोल के अंदर भी I see a potato, but when we date it back, उस सदी में शायद हिंदुस्तान में पोटैटो थे नहीं. पोर्टुगीज आए, हाँ. अपने साथ आलू और टमाटर को लाए और और खुद अब चले हम गए. खा रहे हैं. वहीं पर जहाँ पोटैटो के साथ रिलेशनशिप बनाया, वहीं कहीं ना कहीं बंगालीज ने टोमेटोज को डिच कर दिया, क्योंकि बहुत सी बंगाली डिशेस में टोमेटोज है ही नहीं. बिल्कुल. आपने डाला है? मैंने डाला है. बट टमाटर का मुझे इतना फ्लेवर आ नहीं रहा. मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है. और क्योंकि ये सीजन है गोंधराज नींबू का, हाँ. एक बड़ा नींबू होता है, हाँ, मालूम. उसको मैंने डाला हुआ है कि एक सावरिंग एजेंट भी इसमें आ गया और उसका हाँ. वो फ्लेवर भी आ गया. और इसमें जो वड़ियां हैं उड़द दाल, दे rather look or feel a little bland. मतलब अब बेट, क्योंकि जो बंगाली बड़ी होता है उसमें स्पाइसेस जाता नहीं है जब बनता है. ओके. चाहे वो उड़द दाल का ही हो, चाहे ये मसूर की दाल का ही हो, या फिर गहना बड़ी जो है, इनमें हम लोग कभी भी स्पाइसेस नहीं डालते हैं बहुत ज्यादा. Okay. प्लांटी होता है. ओके. एंड बड़ी इज काइंड ऑफ क्योंकि इसमें फिश नहीं जा रहा है, दैट इज एक्चुअली कंप्लीटिंग द डिश. इसमें अब लेंटिल आ गया, फिलर. Got it. Devjani's dish was very reassuring. Our homes definitely reflect one true culinary legacy. We may adapt to the newer ingredients, but the essence stays the same. जब तक लोग घरों में ट्रेडिशनल खाना बना रहे हैं, हमारी culinary legacy बरकरार रहेगी. But I was also curious to know how would a fine dine establishment package this. ये जानने के लिए मैं JW Marriott कोलकाता पहुंचा और एग्जीक्यूटिव शेफ आलोक से मिला. This is a very traditional home dish जो कि हर एक घर में बनता है, मतलब सालों से बना आ रहा है. And it has actually stayed in the homes. It's not become very commercial. मुझे बहुत पसंद आई ये जो छोटी छोटी उड़द दाल की बड़ियां हैं. They look awesome. तो ये पैन में आपने सौते किए. Obviously we are in Bengal, so mustard oil इस्तेमाल हो रहा है.
इसमें सिर्फ काला जीरा जाता है, ओके, जिसको यहाँ पे काला जीरा बोलते हैं, बट अदरवाइज कलौंजी बोलते कलौंजी हैं। बोलते हैं, कालो जीरो। कालो जीरो, यस। ये वो वाला है रिचवुड, रिच गोल्ड, ये परवल, दिस इज एशवुड, एशवुड, बैंगन। यस। ट्रेडिशनली इसमें अनियन गार्लिक कुछ नहीं डालते थे, बट एज टाइम हैज पास बाय पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग अनियन गार्लिक इन ऑल द करीज। जब भी बंगाली खाने की बात करते हैं, द फर्स्ट स्पाइस मिक्स इज पांचफोरन। वो एक्चुअली लोगों का परसेप्शन हो गया है कि बंगाली तो पंचफोरन जाएगा ही, बट अदरवाइज इसमें सिर्फ कालो जीरा जाता था, बट अब कुछ लोग पंचफोरन भी डालते हैं उसमें। इसमें फिर वो हरी मिर्च जाएगी, क्योंकि इसका नाम ये मोरिचेर झोल, और थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी डालते हैं, बिकॉज सपोज टू बी लिटिल स्पाइसी। Little spicy. I already see you adding a lot of spice there. यूजली क्या होता है कि हम इतना सारा मसाला डाल देते हैं तो उसमें मसाले का टेस्ट आता था, वेजिटेबल का कम आता टेस्ट, बट इस डिश में हर एक वेजिटेबल का अपना खुद का टेस्ट होता है, वो रिटर्न होता है, बिकॉज हम मसाले के इसमें सिर्फ आपको हल्दी है, नमक है, लास्ट में थोड़ा सा शुगर डालते हैं, बिकॉज यहाँ हर एक डिश में, स्पेशली वेजिटेरियन डिशेज में थोड़ा सा शुगर डालते ये हैं। और है लास्ट शाक। पे ये लाउ शाक जिसको बोलते हैं, जो कि पंपकिन के लीव्स हैं, लौकी के लीव्स, वो जाता है। मैंने लौकी और पम्पकिन बहुत खाया है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारी क्यूजीन में उसके पत्तों की भी सब्जी बनती है। हाँ, That's interesting. स्टेम्स भी इस्तेमाल हो रही हैं। हेल्दी डिश है यार। इट्स वेरी होलसम। इसमें कोई थिकनिंग नहीं जाती। नहीं, आज के ज़माने में लोग फ्लावर को थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके और वो डालते हैं उसको, लाइक अ स्लरी। Don't you think that's a very Chinese thing to do? It कि is. आपने सॉस हाँ, बनाई like और cornflour उसके बाद डालते हैं उसको थिकन किया। बिकॉज बंगाल में चाइनीज क्यूजीन का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। लॉट ऑफ Because there are पीपल lot of Chinese माइग्रेटेड settlers. फ्रॉम एंड There are lot of सेटल्ड Chinese इन settlers बंगाल। here. Yes, पॉसिबल, जस्ट पॉसिबल हो सकता है। Morichur Jol, what a journey. From chui jal to green chilies, addition of potatoes and spices. Each has its own distinct taste, but what is common between all of this is the satisfaction I got while savoring each version. It's a brilliant dish. Just the addition of mustard oil, chili and कालो जीरो, पूरा का Change the पूरा profile. प्रोफाइल उस सब्जी का बिल्कुल चेंज हो गया। इट डजंट फील लाइक दैट यू हैविंग अ मिक्स्ड वेजिटेबल। Yes. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ दोस करीज व्हिच हैव स्टिल रिमेन्ड वेरी सिंपल। और इसमें अभी कुछ लोग जैसे घर पे ना प्रॉन्स डालते हैं, सो इट गिव्स अ वेरी यूनिक फ्लेवर एंड इट बिकम्स अ यूनिक नॉन वेजिटेरियन डिश। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि सी फूड इसमें जाएगा तो बड़े क्लीन फ्लेवर्स के साथ सी फूड पकाते हैं, सो दिस विल एक्चुअली जेल। I wish most of our curries could just go back a little in time, और जो unnecessary frills हम as chefs add कर देते हैं in restaurants specifically, remove them and make them more honest, more simple and more tasty. Yes, the That's way very it's good. supposed to be. Welcome to Curries of India. Over years, traveling to Bengal had familiarized me to Bengali cuisine. Did you know Bengali cuisine has multi-course tradition? खाना कोर्स वाइज सर्व होता है और खाने की शुरुआत बिटर फूड से होती है। बंगाल के खाने में इतनी बारीकियां हैं which are so interesting and practically unknown to the world. But what I missed eating on this trip was the Mache Jhol, the most popular export to the world from Bengali homes. मुझे ऐसा लगता है कि माछेर झोल कुछ कुछ मिलती है मोरिचेर झोल से। एक अच्छी माछेर झोल बनाने के लिए यू नीड फ्रेश फिश। मेरे पास है ये रोहू फिश, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी। जब तक हमारी फिश तैयार हो रही है, हम एक पेस्ट बनाएंगे मसालों की। फिश तैयार है, विल टेक आउट द फिश।
अब सेम ऑयल के अंदर हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ऑयल सतह पे नहीं आ जाता, और उस वक्त इसमें हम डालेंगे पानी और फिर इसमें हम मछली को छोड़ेंगे। झोल के अंदर एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। नाउ वील प्लेट इट।